All right. Hi everyone. Good evening. Good evening, Sanika. Hi प्रथमेश. मुझे हर्ष ने बोला कि आज आप लोगों का लेक्चर मैथ्स का लेट खत्म हुआ है. या हाय केदार, हाय प्रत्याशा. आप लोगों का मैथ्स का लेक्चर अभी लेट छोड़ा गया है क्या? अच्छा, ठीक है. तो 5 मिनट बाद रिज्यूम कर लेते हैं. इन द सेंस मैं एक बार क्विक रिकैप ही कर लेता हूँ हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है. हाँ, मैं लास्ट लेक्चर का एक बार रिकैप करूंगा आप लोगों के सामने. That will be important because last lecture में you guys did not get the concept completely. तो हम लोग डिस्कस करेंगे वो. Now, as a quick recap of the real gas portion, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना हम लोगों ने किस तरीके से रियल गैस का अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया था. राइट, वी वर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, right? And in that, we had spoken about how a real gas deviates from ideal behavior when seen on a P versus V graph, right? And इस deviation को हमने समझा था using compressibility factor Z, right? So high pressure region में we had positive deviation, in low pressure region we had negative deviation, and under very low pressure conditions Z was almost approaching 1, right? Now this experimental understanding was understood, okay? This observation was understood from the point of view of the dominant forces between molecules, right? अगर high pressure region में है, right, volume छोटा है, molecules पास हैं, तो nucleus के बीच के repulsions they tend to dominate, and as a result we see that we have a positive deviation. रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, ठीक है. द गैस बिकम्स लेस कंप्रेसिबल. एंड इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन रीजन, लो प्रेशर रीजन में नेगेटिव डेविएशन होगा, तो यहाँ पर व्हाट वी से इज दैट द अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, राइट. एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे होंगे, एंड दैट इज व्हाई द रियल वॉल्यूम कम्स आउट टू बी लेस देन द प्रेडिक्टेड बाय आइडियल गैस इक्वेशन. वी से दैट द गैस इज मोर कंप्रेसिबल, राइट. तो ये जो एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग था, ये एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग को हम लोगों ने Z वर्सेस P के ग्राफ के फॉर्म में भी स्टडी किया था, ठीक है. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग अब वैन डर वाल्स इक्वेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को वैन डर वाल्स इक्वेशन का डेरिवेशन बताया था, किस तरीके से हम लोग एक आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई करके करेक्ट करके वैन डर वाल्स इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं, right? So we spoke about volume correction, pressure correction, like all those details. And even if you are not much comfortable with the derivation, I asked you to focus directly then on the van der Waals equation, right? That van der Waals equation is something जिसका इन्फरेंस, जिसके टर्म्स का मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, राइट. इसमें P was the actual pressure, V was the volume of the vessel, ठीक है. And this part, that P plus something, P plus A n square by V square, right, this is what your corrected pressure is, right.
that is what the pressure would be if the real gas was to behave like an ideal gas. ठीक है? And this V minus NB is the corrected volume. This is what is the volume available for free movement of the molecules. That is what was the definition of V in the ideal gas equation, right? And these terms A n square by V square, we call this as pressure correction, and NB we call it as volume correction, right? Specifically इसके अंदर जो term A and B है, these are called as van der Waals parameters. ठीक है? B क्या represent करता है? Excluded volume per mole of real gas, right? And A, my bad, A represented the intermolecular force of attraction between molecules of a real gas, right? A and B का values किस तरीके से different gases के लिए vary करता है, उसका हमने एक understanding develop किया था. That B is related to the size of the molecules. अगर size बढ़ता जाएगा तो B का value बढ़ता जाएगा, right? And A के लिए हम लोगों ने बोला था that this is something which represents the intermolecular force of attraction. तो polar gases के बीच में ज़्यादा attractive force रहता है as compared to non-polar gases, right? And अगर non-polar gases के बीच में compare करना होता है तो जिनका size बड़ा होता है उनके बीच में ज़्यादा attractive force रहता है. ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग कॉल्ड एज लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस. ठीक है? तो ये हम लोगों ने van der Waals इक्वेशन का डेरिवेशन किया था इन लास्ट टू लास्ट क्लास. ठीक है? देन इसके बाद मैंने आपको बोला था दैट एज पार्ट ऑफ नाउ आवर वैलिडेशन, ठीक है, van der Waals इक्वेशन को हम लोगों को वैलिडेट करना था, राइट? दैट दिस van der Waals इक्वेशन दैट वी डिराइव्ड मस्ट एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर. ठीक है? एंड उस पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस करे थे ऑफ van der Waals इक्वेशन. दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास, राइट? सो वी हैड द van der Waals इक्वेशन एंड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस लाइक लो प्रेशर कंडीशंस वी मॉडिफाइड द van der Waals इक्वेशन. वी नेग्लेक्टेड यहाँ पर जैसे NB है, वी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू B to manipulate the equation and come up with the result of Z, which was coming out to be 1 minus A upon VMRT. ठीक है? Showing that yes, van der Waals equation also is pointing out towards negative deviation in case of low pressure conditions. ठीक है? Then high pressure conditions में, ठीक है, अब ये neglections जो मैंने करे थे, right, इसमें कैसे मैंने आपको subjectively explain करा था कि low pressure है तो volume high रहेगा. ठीक है? एंड वॉल्यूम हाई रहेगा तो उसके कंपैरिजन में ये NB जो हमने अजम्पशन लिया है, ये NB अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू V. ठीक है? ऑल्दो यहाँ पर मैंने वैल्यूज लेके नहीं बताया आपको. ठीक है? यू कुड टेक वैल्यूज ऑल्सो एंड देन मेक अ गेस फॉर इट. ठीक है? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में आपको B के वैल्यूज बताए थे, राइट? सो इफ यू रिमेम्बर, हाँ, इसी में यू कैन सी ये B के वैल्यूज कितने छोटे हैं, सेकेंड डेसिमल प्लेस में जाके आ रहे हैं. ठीक है? तो इनको अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ठीक है, फॉर लो प्रेशर कंडीशंस जहाँ पे यू हैव मॉडरेट वॉल्यूम. ठीक है? मान लो 1 लीटर भी है तो 1 लीटर के कंपैरिजन में, राइट, ये जो B का वैल्यू है, राइट, 0.02, राइट, इट इज लाइक 2% और 3%. दिस इज समथिंग विच कैन बी नेग्लेक्टेड. ठीक है? सो दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी नेग्लेक्टेड, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. ठीक है? इसको आप कैलकुलेशन में एलिमिनेट कर सकते हो और उससे एक Z का एक एस्टिमेटेड वैल्यू मैंने आपको निकाल के बताया इज समथिंग व्हिच इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 1 ओनली. ठीक है? वैसे ही हाई प्रेशर कंडीशंस में व्हाट वी आर सेइंग इज दैट दिस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर का जो ये अट्रैक्टिव फोर्स वाला करेक्शन था, इसको हम लोग P के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं. And after neglecting, if we look at the van der Waals equation and look at the result of Z coming from it, we'll find that Z is coming out to be greater than 1. ठीक है? इसका expression याद रखना that Z is coming out to be 1 plus PV by RT. So what we are saying is that this experimental observation that we saw about a real gas is being quite decently explained by van der Waals equation. ठीक है? This low pressure region में the Z is coming out, the compressibility factor is coming out to be less than 1, represented by 1 minus A upon VMRT.
highlighting that these attractive forces are dominating. ठीक है, तो अगर किसी का A का वैल्यू ज्यादा रहेगा, किसी गैस का अट्रैक्टिव फोर्स उसके ज्यादा रहेंगे तो उसका ग्राफ और नीचे रहेगा. ठीक है, बिकॉज उसका A का वैल्यू ज्यादा रहेगा, Z का वैल्यू 1 से और कम रहेगा. ठीक है, एंड सिमिलरली, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट हाई प्रेशर रीजन, ठीक है, इसमें Z का वैल्यू, राइट, you are seeing it is coming out to be 1 plus PV by RT. It is greater than 1, right? And यहाँ पे मैंने आपको एक highlight बताया था that this is जो B एक वंडरवॉल फैक्टर हमने डिस्कस किया था, ये वॉल्यूम करेक्शन तो रिप्रेजेंट कर ही रहा था, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर ही रहा था, साथ ही साथ में रिपल्सिव फोर्सेस भी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, नाउ हाँ, इसमें क्या डाउट है गुरुदेव आपका? You didn't understand why I took n equal to 1. नहीं, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आप n equal to 1 के लिए ही करो. ये तो जस्ट मैंने सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक n एज अ वेरिएबल ना रहे. ठीक है, जस्ट टेक एज अ सिंपल केस कि n इज इक्वल टू 1 मोल एंड v को उसमें हम लोग फिर मोलर वॉल्यूम से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, तो दिस वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन. ऐसा नहीं, आप चाहिए तो इसको विद n भी यूज कर लो. ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं n फीचर हो जाएगा. ठीक है, अरे तुम कैसा बेवकूफ डाउट पूछ रहे हो पृथ्वीराज? लाइक हाउ कैन दिस बी नेगेटिव? क्या a नेगेटिव हो सकता है? क्या vm r t इनमें से कोई सी भी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? टेम्परेचर हमेशा केल्विन में देते हैं राजा. मतलब इतना गैसियस स्टेट पढ़ लिया उसके बाद भी तुम्हें अभी तक ये नहीं पता पड़ा कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज करना है. तुम अभी भी वहीं पे अटके हुए हो. -15 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 डिग्री सेंटीग्रेड को काटने वाले तुम ही थे वो. ठीक है, so this was something that was the validation of van der Waal equation, and it helped us understand this variation of z with respect to pressure. ठीक है, then in the last class, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मैं z का आपको टेम्परेचर के साथ में भी वेरिएशन समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ. एंड टू अंडरस्टैंड दैट वेरिएशन ऑफ z विद टेम्परेचर, ठीक है, मैंने आपको बोला था दैट वी वुड वांट टू एक्सप्रेस van der Waals equation in its virial form. ठीक है, why we did that? Because it helps us understand an important experimental observation about real gases which is called as Boyle's temperature. ठीक है, तो ये एक experimental observation था about real gases that there exists a temperature जहां पर a gas tends to behave like an ideal gas for a range of low pressure conditions. ठीक है, so this observation about real gases is something that we wanted to understand from van der Waals equation, and वो directly van der Waals equation के form में नहीं दिखता है. ठीक है, just by using this equation इतना clearly वो समझ में नहीं आता है, तो उसका ये virial form, ठीक है, comes handy. ठीक है, तो पहले मैंने आपको समझाया कि virial form होता क्या है. ठीक है, मैंने बताया it's a mathematical way of describing one variable as a power series expansion of another variable. ठीक है, तो हम लोग z को p के पावर सीरीज एक्सपेंशन या v के पावर सीरीज एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं with these coefficients in place, right? And मैंने आपको बताया था that for a real gas these coefficients are experimentally determined, and what we observe is that the first virial coefficient comes out to be temperature independent, while the other B, C, D and आगे के virial coefficients they come out to be temperature dependent. This is what is an experimental observation for a real gas. ठीक है, now अब नोटिस करना, अगर हम van der Waal equation को मॉडिफाई करते हैं into virial form, तो उसके लिए there are these mathematical steps जो मैंने आपको बताए थे. ठीक है, मैथमेटिकल स्टेप्स अगेन आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको पहले से पता होंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे करना था. ये मैंने आपको दिखाया, आई शोड यू कि इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे. ठीक है, इस तरीके से थोड़ा मैथ्स यूज करेंगे तो वी कैन राइट z एज अ पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ v. ठीक है, सो दिस वाज van der Waals इक्वेशन का विरियल फॉर्म. ठीक है,
नाउ अब इसमें आप नोटिस करना, मैंने आपको बताया था ये जो पहला कोफिशिएंट है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आ रहा है, यू कैन सी दैट ये जस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू 1 आ रहा है। जो दूसरा कोफिशिएंट है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट आ रहा है, ठीक है, विच इज एज पर द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑल्सो। बट ये थर्ड फोर्थ एंड आगे की कोफिशिएंट्स आर नॉट कमिंग आउट टू बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। सो दिस कम्स आउट एज अ लाइक डाउट कि ये सही है गलत है। तो द थिंग इज दैट दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन, ठीक है। वंडरवॉल इक्वेशन should have been able to address these other coefficients also to be dependent on temperature, ठीक है। बट ये ड्रॉबैक है उसका, एंड ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वंडरवॉल्स इक्वेशन ऐसा नहीं है इट इज द परफेक्ट रियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इट इज one of the most important, one of the most fundamental real gas equations but not the most accurate one, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने रियल फॉर्म ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन लिखा, ठीक है। नाउ आफ्टर राइटिंग दिस, अब आपको मैंने बताया था दैट यू आर गोइंग टू बी एबल टू अप्रिशिएट दैट व्हाई वी रोट द वंडरवॉल्स इक्वेशन इन रियल फॉर्म, ठीक है। दिस representation will help you understand the variation of z with temperature as well, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए हम लोगों ने अब अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रियल गैस के लिए, ठीक है, रियल गैस के लिए दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फिनोमेना दैट देयर एग्जिस्ट अ टेम्परेचर, ठीक है, जहां पर द गैस टेंड्स टू बिहेव आइडियली ओवर अ रेंज ऑफ लो प्रेशर कंडीशन, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे आपको, राइट। जैसे मैंने आपको N2 का एग्जांपल दिया था, राइट, दैट 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसका बॉयल्स टेम्परेचर रहता है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास नाइट्रोजन गैस टेंड्स टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस ओवर अ रेंज ऑफ लो प्रेशर कंडीशंस, ठीक है। नाउ दिस ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये जो बॉयल्स टेम्परेचर का ऑब्जर्वेशन है, अब इसके बारे में नोटिस करना, यही ऑब्जर्वेशन हमें वंडरवॉल्स इक्वेशन से भी मिल रहा है, ठीक है। एनी गुड रियल गैस इक्वेशन शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट दिस बिहेवियर दैट बॉयल्स टेम्परेचर पर द रियल गैस इज शोइंग आइडियल बिहेवियर ओवर अ रेंज ऑफ लो प्रेशर कंडीशंस। तो ये चीज वंडरवॉल्स इक्वेशन से भी समझ में आती है, बट नॉट द कोर फॉर्म ऑफ वंडरवॉल्स इक्वेशन, उसका विरियल फॉर्म से, ठीक है। कैसे, आप यहाँ पे नोटिस करो कि अगर इस विरियल फॉर्म ऑफ वंडरवॉल्स इक्वेशन को मैं लो प्रेशर कंडीशंस पे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूंगा, तो व्हाट आई कैन से इज दैट लो प्रेशर कंडीशंस पे वॉल्यूम लार्ज रहेगा, ठीक है। तो ये जो वीएम स्क्वायर वीएम क्यूब है या फिर इनके आगे के टर्म्स रहेंगे, ठीक है, वो मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वीएम विल बी लार्ज। So I have a simplified version of van der Waals equation under low pressure conditions, which says that z is equal to 1 plus b minus a by rt into 1 by vm, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना दैट इफ आई टेक अ टेम्परेचर विच इज इक्वल टू बी अपॉन ए आर, ठीक है, यू कैन नोटिस इफ आई टेक द टेम्परेचर टू बी इक्वल टू बी अपॉन ए आर, देन दिस कोएफिशिएंट ऑफ 1 by vm becomes 0 and z will come out to be equal to 1, राइट। तो ये कैसा ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, दैट एट दिस टेम्परेचर a अपॉन बी आर वी आर सीइंग दैट z विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, ओवर अ रेंज ऑफ लो प्रेशर कंडीशंस, ठीक है। लो प्रेशर के लिए हमने सिंप्लीफाइड वर्जन यूज किया था। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, फिर ये बी स्क्वायर बाय वी एम स्क्वायर, बी क्यूब बाय वी एम क्यूब, ये वाले टर्म्स भी एड अप हो जाएंगे ना। तो मेरा आंसर 1 से फिर ज्यादा हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस समथिंग समथिंग। तो ये मेरा इवेंचुअली, ठीक है, हायर प्रेशर कंडीशंस पे z 1 से ज्यादा हो ही जाएगा। इसको ग्राफिकली मैंने आपको कैसे ऑब्जर्व करने के लिए देखा था कि z वर्सेस p का अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं तो लो प्रेशर कंडीशंस में कैसा रह रहा है, z विल बी अ हॉरिजॉन्टल कर्व इक्वल टू 1, ठीक है, बिकॉज इस टेम्परेचर पर ये कोएफिशिएंट 0 है। बट इवेंचुअली, ठीक है, अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो फिर हम ये जो नेग्लिजिबल टर्म्स थी इनको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे एंड z का वैल्यू 1 से ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। So this is what I represented or wanted to talk about Boyle's temperature as, ठीक है। Now अब इसमें एक एक करके आप लोगों के जो जो डाउट्स थे, कंसर्न्स थे, वो मैं एड्रेस करता हूँ।
ठीक है, फिर हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरुदेव का डाउट आ रहा है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ बोथ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर हाई एट द सेम टाइम। उल्टा बोल रहे हो ना, बॉयल्स लॉ तो ये कहता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। दैट इज व्हाट बॉयल्स लॉ वाज। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ, क्या कहना चाह रहे हो तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लाइक then only at real gas parameter will be neglected. I think there is some conceptual gap here, Gurdev. तुम या तो you speak up and let me understand तुम क्या बोलना चाह रहे हो। अच्छा, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, देन यश का डाउट है। यश, क्या कह रहे हो तुम? Where did we get the result that second, third, fourth coefficients are temperature dependent? Experimentally, यश। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई, ये जो वेरियल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटली आ रहे हैं। ठीक है, तो उनसे ये ऑब्जर्वेशन आ रहा है। ठीक है, मतलब यू कैन काइंड ऑफ इमेजिन इट इन दिस मैनर दैट ये पी वी इज इक्वल टू जेड एन आर टी। ठीक है, मैंने आपको 1 मोल गैस दे दिया। ठीक है, एंड उसका टेम्परेचर कंडीशंस भी आपको दे दिया। ठीक है, एंड उस ये उस किस वेसल के अंदर है वो भी आपको बता दिया। ठीक है, एंड अब आप डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर कंडीशंस पर डिफरेंट डिफरेंट जेड के वैल्यूज नोटिस कर रहे हो। ठीक है, और यू कुड वेरी द वॉल्यूम, कीप द प्रेशर कांस्टेंट, यू कुड वेरी द वॉल्यूम। ठीक है, तो v वर्सेस z का वेरिएशन नोट कर रहे हो, और वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स आप कलेक्ट कर रहे हो। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करोगे। ठीक है, और इन डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करके लाइक यू विल ट्राई टू फिट इन अ वेरियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। उस वेरियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का ये ऑब्जर्वेशन आएगा। ठीक है, वो जो मैंने बताया था कि 20 डेटा पॉइंट लिए 20 इक्वेशन आ जाएंगी, तो ये 20 ABCD आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये समझ में आता है दैट ये जो वेरियल कोफिशिएंट्स रहते हैं, ठीक है, इसमें पहला वाला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, एंड बाद के जो ये वेरियल कोफिशिएंट्स आते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, देन उसके बाद शुभम का क्या डाउट है? वीएम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। हाँ हाँ बिल्कुल, वीएम टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना। अभी यहाँ पर जैसे ये जो मैंने लेट्स से ऑब्जर्वेशन बनाई, ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैंने बनाई। ठीक है, अब मैं टेम्परेचर चेंज करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि Z वर्सेस P का वेरिएशन कैसा रहेगा फॉर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर। ये बॉयल्स टेम्परेचर पर वेरिएशन था। ठीक है, वही मैं अभी नेक्स्ट आपको इसके नीचे मैंने वही आपको बताया है। ठीक है, अरे तुम रिलेटेड डाउट पूछो ना यश, अभी जबरदस्ती इधर उधर के डाउट मत पूछो, बाद में पूछना। हाँ, तो अभी ये जो मैंने एक्सप्लेन किया, राइट, वेरियल फॉर्म ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन एंड बॉयल्स टेम्परेचर, ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? फ्लो समझ में आया किस तरीके से हम लोग प्रोग्रेस करें?
ठीक है, अब इसमें जो एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो मैं आपको और बस बताना चाह रहा था कि बॉयल्स टेम्परेचर पर तो ऐसा ग्राफ बन रहा है Z वर्सेस P का, ठीक है, बट अगर टेम्परेचर, ठीक है, मान लो बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो ये जो B माइनस ए बाय आर टी है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ठीक है, ये B माइनस ए बाय आर टी, ठीक है, फॉर T ग्रेटर देन A बाय बी आर, will it be positive or negative? It will become negative. Sorry, it will become positive. हाँ, right, it will become positive. तो कैसा हो जाएगा? Z का वैल्यू 1 प्लस समथिंग हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है, दिस सेकेंड कोएफिशिएंट becomes greater than 0 and as a result Z will become greater than 1. तो अब अगर मुझे इस पे इसका ग्राफ बनाना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करना, जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट, ठीक है, फोकस ऑन दिस लो प्रेशर रीजन. अगर बॉयल्स टेम्परेचर पे Z इक्वल टू 1 था, ठीक है, तो ग्रेटर देन बॉयल्स टेम्परेचर पे अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ 1 के ऊपर रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है. एक बार के लिए ये वाले रीजन को भूल जाओ, ठीक है, लो प्रेशर रीजन पे फोकस कर रहे हैं अभी, ठीक है. और अगर टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम है, ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज लेस देन बॉयल्स टेम्परेचर, then ये B minus A by RT will be less than 0, the second variable coefficient will be less than 0 and Z will become less than 1, ठीक है, तो आपका ग्राफ अंडर लो प्रेशर रीजन will come out to be something of this nature, ठीक है. देन हाई प्रेशर रीजन में आप जाओगे, ठीक है, तो इवेंचुअली ये ग्राफ फिर से बढ़ते चले जाएंगे. वाई? बिकॉज यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाले टर्म्स आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये वाले टर्म्स दे कांट बी नेग्लेक्टेड और ये एड अप होते जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका ग्राफ इवेंचुअली वापस फिर इंक्रीज ही कर जाएगा, ठीक है. तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ Z वर्सेस T का ग्राफ, सॉरी Z वर्सेस P का ग्राफ वुड बी फॉर डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ अ गिवन गैस, ठीक है. नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, with this knowledge you are in a better position to understand certain graphs of real gases, ठीक है. तो लेट्स बिगिन आज का डिस्कशन. सो हियर इज एन एग्जांपल, ठीक है, ये मैंने सीधे एनसीईआरटी से उठाया है, ठीक है. नाउ एनसीईआरटी में ये ग्राफ बनाया हुआ है पीवी वर्सेस पी, ठीक है, पीवी वर्सेस पी या फिर जेड वर्सेस पी का ग्राफ ऑफ द सेम नेचर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पीवी है उसको मैं क्या लिख दूंगा, ठीक है, इट विल बी जेड इंटू एन आर टी, ठीक है. तो ये z इक्वल टू 1 या फिर ये पीवी, ये जो पॉइंट रहेगा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, z इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग दिस विल बी एन आर टी, ठीक है. तो एनीवेज ये जो ग्राफ है z वर्सेस p या फिर pv वर्सेस p, ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए, ठीक है, H2, He, CO, CH4, इन चारों गैसेस के लिए ड्रॉ करा जा रहा है एट 298 केल्विन, ठीक है. नाउ व्हाट आई एम आस्किंग टू comment is, based on this graph what are the different observations that can be concluded, ठीक है. तो अब इसमें नोटिस करना आप, ये हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ, ठीक है, z इक्वल टू 1 के ऊपर ही है, ठीक है, वेयर एज CO और CH4 का ऐसे नीचे जाके ऊपर आ रहा है, ठीक है. नाउ इससे अब क्या क्या कंक्लूजन्स आ पाएंगे नोटिस करना. H2 एंड He के लिए कैन आई मेक दिस कंक्लूजन दैट उनका बॉयल्स टेम्परेचर is less than 298 Kelvin. Are you okay with this observation?
राइट। ये अभी जस्ट मैंने बताया ना कि अगर हम लोग किसी गैस का ग्राफ बना रहे हैं Z वर्सेस P का, ठीक है, तो बॉयल्स टेम्परेचर पे तो उसका ग्राफ इस तरीके से रहेगा, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन बॉयल्स टेम्परेचर उसका ग्राफ कुछ जैसा हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ है वैसा दिखेगा। राइट। अच्छा, COCH4 के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? इज देयर बॉयल्स टेम्परेचर ग्रेटर देन 298 केल्विन और लेस देन 298 केल्विन? CO एंड CH4 के लिए their boils temperature is greater than 298 केल्विन। ठीक है, तभी उनका ग्राफ ऐसे नीचे जाके ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरी दो की ऑब्जर्वेशंस इस ग्राफ से आई हैं। ठीक है, आई होप ये ऑब्जर्वेशंस आपको भी समझ में आ रही हैं। अच्छा, इसी ग्राफ से अब मैं थोड़ी सी और ऑब्जर्वेशंस भी इन्फर करना चाहूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। what other observations can be inferred from this graph? Now if you focus on like this region, okay, let me use some other, if you focus on this region, यहाँ पर अंडर हाई प्रेशर रीजन, ठीक है, इनफैक्ट आप पूरा ही ले सकते हो, अंडर हाई प्रेशर रीजन हम लोगों ने कैसा ऑब्जर्व किया था? Z was equal to 1 plus TB by RT, right? So can you like make an inference in terms of the slope? ठीक है, यहाँ पर आप एक इन्फ्रेंस कुछ देख सकते हो दैट ये जो Z वर्सेस P का ग्राफ है इन दिस रीजन, ठीक है, तो उसमें ये B बाय RT इट इज समहाउ एसोसिएटेड विद द स्लोप। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका साइज ज्यादा, या फिर वाइस वर्सा? है कि नहीं? सो इफ आई वाज टू मेक एन ऑब्जर्वेशन दैट H2 और He का मैं ग्राफ कंपेयर कर रहा हूं, तो उसमें कैन यू सी दैट B of H2 विल बी ग्रेटर देन B of He? राइट, मैं जूम आउट कर देता हूं। यहाँ पर आप नोटिस करोगे हाई प्रेशर रीजन में, ठीक है, H2 और He के ऊपर ही फोकस करो, चलो आप, ठीक है, H2 और He के ऊपर ही फोकस करो, तो उसमें कैसा दिख रहा है? H2 का ग्राफ ऊपर है, He का ग्राफ नीचे है, राइट। जो स्लोप है H2 के ग्राफ का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू He, राइट। वो स्लोप B से रिलेटेड है, एज यू कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन, अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस, राइट। So can you see that the B of H2 is greater than He? और ऐसा होना भी चाहिए था, why? Because H2 का साइज He से बड़ा होगा ना। This is also something that we practically know कि ऐसा होना भी चाहिए था। ये समझ में आया? ठीक है रुकवेद, बाकी लोगों को बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये ऑब्जर्वेशन जो मैंने यहाँ से इन्फर किया है? ठीक है, गुड। अब एक और ऑब्जर्वेशन जो मैंने इस ग्राफ से इन्फर किया है वो भी नोटिस करना, ठीक है, दैट इज इन दिस रीजन, ठीक है, लो प्रेशर में कैसा रहता है? ठीक है, अंडर लो प्रेशर कंडीशंस Z क्या हो जाता है? 1 माइनस A अपॉन RT VM, ठीक है।
तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, अगर मैं आपसे CO और CH4 के बारे में ऑब्जर्वेशन पूछूंगा, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा बिटवीन CO एंड CH4 किसके बीच में A का वैल्यू ज्यादा रहेगा, क्या आंसर रहेगा आपका? एनी गेसेस? बिटवीन CO एंड CH4 किसका A का वैल्यू ज्यादा रहेगा? देखो ना, अगर A का वैल्यू ज्यादा है तो Z1 से उतना ही कम है। मतलब ये तो मैथ है ना, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? A का वैल्यू जिसका ज्यादा रहेगा, 1 माइनस ज्यादा विल मेक Z छोटा, राइट? तो किसका A ज्यादा आ रहा है, अभी दोबारा सोच के बताओ जिस जिसने गलत आंसर दिया है। CH4 का A ज्यादा होगा क्योंकि उसका ग्राफ नीचे है ना, मतलब उसका Z का वैल्यू कम है, उसका A का वैल्यू ज्यादा होगा, राइट? सो वही मैंने यहाँ पे आपको बताया दैट फॉर CO एंड CH4, ठीक है, ये Z का ऑब्जर्वेशन रहेगा दैट Z विल बी इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन RTVM, राइट? सिंस द ग्राफ ऑफ CH4 इज बिलो CO, राइट? इसका मतलब क्या हो गया दैट Z का वैल्यू ऑफ CH4 इज लेस, Z का वैल्यू ऑफ CH4 का लेस है, तो A का वैल्यू CH4 का ज्यादा होगा, ठीक है? दैट मीन CH4 हैज ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्सेस देन CO, ठीक है, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं इससे। सो दिस वाज वन एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, दिस वाज वन एग्जाम्पल जहां पर मैंने ये गैसेस का ग्राफ आपके सामने ड्रॉ किया एंड आई आस्क्ड यू टू मेक सर्टेन ऑब्जर्वेशंस। आई आस्क्ड यू टू मेक 3 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, एक तो बी से रिलेटेड था, एक ए से रिलेटेड था और एक बॉयल्स टेम्परेचर से रिलेटेड था, ठीक है? आई होप ये तीनों ऑब्जर्वेशंस आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है? अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ इसी को और फर्दर प्रैक्टिस करने का, ठीक है? एंड दिस इज समथिंग विच आई लीव अप टू यू टू अगेन थिंक एंड डिसाइफर, ठीक है? डिस्कस तो मैं करूंगा ही सही, बट लेट्स सी। तो ये 4 ग्राफ है PQRS और ये 4 गैसेस हैं, ठीक है? तो इनका ये रूम टेम्परेचर पे ग्राफ मैंने बनाया है, ठीक है? कैन यू डू द मैच, कौन सा किसका ग्राफ होगा, ठीक है? यू कैन टेक एन अटेम्प्ट बेस्ड ऑन आवर लर्निंग फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल, ठीक है? सो पृथ्वीराज यहाँ पर देखो ना, PV/RT ये Z है, ठीक है? अब अगर इसमें से मैं RT हटाता हूं तो ये नेचर ऑफ ग्राफ तो यही रहेगा ना, क्योंकि RT कांस्टेंट है, तो नेचर ऐसा ही रहेगा ग्राफ का, कर्व जो रहेंगे वो ऐसे ही रहेंगे, जस्ट स्केल चेंज हो जाएगा, ठीक है? अगर मान लो ये 1 की जगह क्या आ जाएगा, अगर मैं RT यहाँ पे हटा दूंगा, सिर्फ PV प्लॉट करूंगा और टेम्परेचर मान लो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है? तो ये 22.4 आ जाएगा ना, 22.4 ATM लीटर, ठीक है? ऑलराइट, सो ये अब एक अटेम्प्ट लो, इफ यू कैन मिक्स एंड मैच, पार्शियली आंसर भी कर पा रहे हो तो भी गुड टू नो, ठीक है? इफ यू कैन मैच समथिंग विद समथिंग। ठीक है, इसमें मैं आपको एक हिंट जरूर दे देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको एक हिंट जरूर दे देता हूँ, ठीक है? दैट हिंट इज H2 नॉन पोलर है, मीथेन नॉन पोलर है, N2 नॉन पोलर है, अमोनिया इज अ पोलर गैस, ठीक है? ये वैसे तो मैं हिंट नहीं देता, बट क्योंकि आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है इसलिए आई एम गिविंग दिस हिंट। दिस माइट कम यूजफुल। ठीक है पृथ्वीराज,
गुड गेस। बाकी लोग भी सोचो। पृथ्वीराज ने एक तो सही आंसर दे दिया है। आस्था, आपका एस का गड़बड़ है, क्यू का क्यू का भी गड़बड़ है, पी का भी गड़बड़ है, आर का भी गड़बड़ है, सारी गड़बड़ है। ओके सत्या, आपका आर का सही है, ठीक है। पृथ्वीराज, आपका एस का सही था, ठीक है। हाँ प्रथमेश, आपका भी एस का करेक्ट गैस है। ओके हर्ष, तुम्हारा देखने दो तुमने क्या करा है। हर्ष, तुम्हारा आर का सही है, पी का भी सही है, क्यू का भी सही है और एस का भी सही है। गुड, तो तुमने पूरा सही दे दिया है। ओके ध्रुवा, नहीं आपका एस का सही नहीं है। शेखर, आपका भी सही नहीं है पी का। सुरावी, आपका भी सही नहीं है पी का। हम्म। हाँ श्रेयस, आपका आर का एटलीस्ट सही है। नहीं शेखर, आपका अभी तक तो सही नहीं आया है। हम्म। नहीं सुरावी, आपका भी सही नहीं है। ओके केदार का देखते हैं। केदार, आपका एस का सही है, आर का सही है, पी का सही है, क्यू का भी सही है, ठीक है। सो केदार इज द सेकंड पर्सन टू गिव ऑल द करेक्ट। गुड। अच्छा अब एक साथ बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं। अब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आई हैव 20-30 ऑड मैसेजेस। ठीक है अब मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी प्रेजेंट द आंसर फर्स्ट एंड देन आप लोग ऑब्जर्व करना। सो द करेक्ट आंसर गोज इन दिस मैनर दैट आर जो है वो H2 को बिलोंग करेगा, ठीक है। ये आर वाला ग्राफ कौन सा है, ठीक है। इट इज ऑल Z above 1 ओनली, ठीक है। तो ये जो ऑल Z above 1 है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम का ही रहता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला, ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। दैट हाइड्रोजन हीलियम आर द टू गैसेस जिनका रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, अबव Z इक्वल टू 1 का ग्राफ रहता है, ठीक है। मतलब अदरवाइज ऐसा नहीं है कि H2 का ग्राफ नीचे नहीं रह सकता, ऑफ कोर्स रह सकता है H2 का ग्राफ भी नीचे, बट दिस हैज टू बी देन एट अ मच लोअर टेम्परेचर देन इट्स बॉइल्स टेम्परेचर, ठीक है। सो यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी करा है दैट H2 एंड He का ग्राफ लाइज अबव Z इक्वल टू 1 एट रूम टेम्परेचर कंडीशंस। तो ये Z R विल बी इक्वल टू H2, ये सबसे ऑब्वियस फर्स्ट गेस था आपका, ठीक है। अब ठीक है, अब फोकस करना। अब मैं रादर देन फोकसिंग ऑन द राइट हैंड साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड और आई शुड से लो प्रेशर रीजन के ऊपर फोकस करना चाहूंगा। इसमें अब मैं पोलर नॉन पोलर के हिसाब से, ठीक है, ये जानता हूं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज्यादा पोलर गैसेस में रहेंगे। तो सबसे नीचे का ग्राफ जो रहेगा उसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगे, यानी कि जो एस ग्राफ है वो NH3 को बिलोंग करना चाहिए, राइट। ये समझ में आया एस NH3 को बिलोंग क्यों करेगा, ठीक है। बिकॉज लोअर ग्राफ मीन्स लेसर जेड मीन्स मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है यहाँ पर आप देखोगे, ये एस का है, ये क्यू है और ये येलो वाला पी है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो इस ग्राफ में एस ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन पी दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें पोलर गैस हैज द मोस्ट अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये जो एस रहेगा वो NH3 को करस्पॉन्ड करेगा,
ठीक है, अब Q एंड P में आप नोटिस करना, लाइक ये जो दोनों गैसेस हैं, अमोनिया सॉरी मीथेन और N2, ये दोनों नॉन पोलर ही हैं, ठीक है। एंड नॉन पोलर में मैंने आपको बताया था दैट अमंग नॉन पोलर द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डिपेंडेंट ऑन साइज, ठीक है। तो ग्रेटर द साइज ग्रेटर द अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो Q और P में कौन सा CH4 कौन सा NH2, वी कैन अंडरस्टैंड दैट ग्रेटर साइज दैट इज CH4 विल बी Q एंड उससे छोटा साइज दैट इज N2 विल बी इक्वल टू P, ठीक है। So that is what made me conclude कि Q को हम लोग मीथेन के बराबर रखेंगे एंड P को हम लोग N2 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। नाउ ऑफ कोर्स हाउ डू यू नो द साइज, मतलब ओके थोड़ा सा तो बॉन्डिंग का नॉलेज लगेगा, बट लाइक इमेजिन ना, ये दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे लाइक ये एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ये दूसरा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर एक मीथेन का मॉलिक्यूल, राइट, फिर हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसके अराउंड, ठीक है। तो डेफिनेटली लाइक मीथेन का साइज comes out to be greater, ठीक है। ये थोड़ा सा क्योंकि आपने बॉन्डिंग पढ़ा नहीं है तो मे बी थोड़ा सा यू आर स्ट्रगलिंग विद इट, बट CH4 और N2 में लाइक इट इज प्रीटी ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड दैट CH4 का साइज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ N2, ठीक है। N2 में इनफैक्ट ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ओवरलैप और भी अच्छा होता है, तो इसका साइज तो और छोटा रहेगा, ठीक है। मतलब ये कार्बन और नाइट्रोजन के एटम में वैसे भी नाइट्रोजन का एटम का साइज छोटा होता है, ठीक है, और ये ओवरलैप भी अच्छे से कर रहा है, बट वो थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज है, ठीक है। एनी विच वेज, तो ये आपको कनेक्शन समझ में आए, ठीक है। इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब some of you were able to give the correct answer to all four was surprising to me as well, मतलब मैं तो किसी का भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चारों सही बता दोगे, बट हाँ there were some students who were able to give these answer correctly। हाँ ये आर्यन ने और प्रथमेश ने भी सही दिया था, गुड, ठीक है। निरंजनी ने भी दिया, निरंजनी तुम्हारा तो नाम मैं पहली बार देख रहा हूँ, तुम आज पहली बार तो लेक्चर अटेंड नहीं कर रही हो। तो कभी कभी बीच में आंसर दे दिया करो like I'm noticing your name for the first time। All right, ठीक है। सो आई थिंक इसमें किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट है, ठीक है। डोंट आस्क अ डाउट लाइक सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, मतलब थोड़ा स्पेसिफिकली बताना, वरना ये लक्ष्मी जैसे स्टूडेंट्स आएंगे वो एक ऐसे सिंपल सा डाउट छोड़ देंगे, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। लक्ष्मी समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें? तो बहुत दिन से तुम कुछ आंसर दे नहीं रही हो। छोड़ तो नहीं दिया अभी, इस हफ्ते कौन सा TWT है तुम लोगों का? हाँ संडे को कौन सा टॉपिक पर है? अच्छा पीरियोडिक का, अच्छा वो अगेन डेट टू डेट वेरी कर रहा होगा, कब किसने कौन सा ज्वाइन किया है। हाँ 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 ठीक है कोई नहीं
नहीं, मेरी आवाज तो वही है सुरावी, इट हैज नॉट चेंज्ड। आई थिंक तुम्हारा ही कुछ आज हेडफोन ईयरफोन अलग से काम कर रहा है। अच्छा, यू आर सेइंग मेरी आवाज अलग आ रही है आज? मेरी तो रेगुलर यही आवाज है यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऑल राइट। हाँ, जैसे आर्यन यहाँ पे साइज का, जैसे N2 और CH4 में अगर मैं आपको पूछूंगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं O2 N2 भी आपसे पूछता, ठीक है, लेट्स से एज एन एग्जांपल, लाइक मैं आपसे ये Z वर्सेस P का ग्राफ पूछ रहा हूँ, ठीक है, लाइक समथिंग ऑफ दिस नेचर, इनमें से एक N2 है और एक O2 है, तो कौन सा मार्क करोगे? कौन सा N2 और कौन सा O2 रहेगा? Let me also, राइट, N2 और O2 में N2 का साइज छोटा होगा ना, O2 का साइज बड़ा होगा, तो लाइक इनफैक्ट मैं एक बार एक्चुअली में रियल वाला कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, मतलब मुझे जनरली ऐसे रैंडम ग्राफ्स नहीं ड्रॉ करने चाहिए, दे शुड बी समथिंग विच आर रिलेटेड टू, ठीक है, मैं एक्चुअली चलो इसमें N2 वर्सेस CO2 बोल देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टिंक्ट डिफरेंस रहेगा। तो कौन सा वाला N2 और कौन सा वाला CO2 रहेगा? नहीं प्रत्याशा, गड़बड़ कर दिया आपने। दोनों नॉन पोलर है, किसका साइज ज्यादा बड़ा है? CO2 का। तो CO2 के अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे ना, तो नीचे वाला ग्राफ CO2 का रहेगा, ऊपर वाला ग्राफ N2 का रहेगा। नहीं समझे आप? CRT सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, सॉरी। इसमें साने का समझ में आया तुम्हें? लेट मी सी, अगर एक आध और इसमें ग्राफ होगा, जैसे ये वाला ऑब्जर्व करो ना, आई थिंक लेट मी ड्रॉ, ये एनसीईआरटी से उठा रहा हूँ मैं ग्राफ, ठीक है, तो इस पे भी अब वापस से, ठीक है, एज अ क्विक सेट ऑफ प्रैक्टिस समझने की कोशिश करो, ठीक है।
H2 का ग्राफ तो ये काफी ऑब्वियस है, ये आपको समझ में आ रहा है दैट टिपिकली H2 का ग्राफ ऐसा रहेगा। ठीक है, अभी आप नोटिस करोगे, ठीक है, N2O2 CH4CO2 ये सब नॉन पोलर है। ठीक है, आपको नहीं पता है बट मैं बता रहा हूँ, N2O2 CH4 एंड CO2 ये सब की सब नॉन पोलर गैसेज हैं। तो इसमें आप नोटिस कर रहे हो ये वाले रीजन में, ठीक है, जिसका साइज ज्यादा है, ठीक है, CO2 का साइज सबसे ज्यादा है इसमें, तो उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज्यादा रहेंगे, उसका Z का वैल्यू सबसे कम रहेगा। फिर CH4, फिर O2, फिर N2। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देयर साइज इन अ डिक्रीजिंग मैनर। समझ में आया? सबसे ज्यादा साइज CO2 का है, उसके बीच का अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, उससे कम साइज CH4 का है, उससे कम साइज O2 का है, उससे कम साइज N2 का है। ठीक है, अभी समझ में आया आप लोगों को? अभी समझ में आया पृथ्वीराज? अब यहाँ पर ये सब नॉन पोलर गैसेस ही थी। ठीक है, मतलब इसमें अगर मान लो मुझे अमोनिया का प्लॉट करना होता, ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर CO2 के नीचे होता क्या, बट CH4 के तो नीचे है अमोनिया। ठीक है, अभी ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये नॉन पोलर है। ठीक है, सबकी सब नॉन पोलर गैसेज हैं, तो उसमें साइज के हिसाब से जाओ ना, ये देखो ये H2 का साइज ऐसा होगा। ठीक है, दिस विल बी H2, दो हाइड्रोजन के एटम्स। ठीक है, देन ये N2 का साइज होगा, थोड़ा उससे बड़ा होगा। ठीक है, देन ये O2 का साइज होगा, O2 का साइज थोड़ा सा इससे और बड़ा होगा। ठीक है, मतलब नॉट एग्जैक्टली स्केल पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, बट थोड़ा सा तो बड़ा होगा ही सही। H2, N2, O2। ठीक है, द रीजन बीइंग कि यहाँ पर O2 में मतलब डबल बॉन्ड रहता है। अब वो ठीक है, बॉन्डिंग का थोड़ा सा पार्ट है विच इज समथिंग, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का थोड़ा सा फर्क पड़ता है वो। अरे ठीक है, वैसे तो ये काफी क्लोज ही रहेंगे साइज में। ठीक है, देन CH4 का साइज डेफिनेटली इन दोनों से बड़ा रहेगा। ठीक है, CH4 में कैसा रहेगा, यू विल हैव अ लार्जर साइज कार्बन एटम एंड उसके अराउंड यू हैव हाइड्रोजन एटम्स। फिर CO2 का साइज, इसमें यू विल हैव अ कार्बन एटम, देन उसके सराउंडिंग यू विल हैव ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो इसका साइज और बड़ा रहेगा। तो अब ये थोड़ा सा बॉन्डिंग का अंडरस्टैंडिंग है, बट हाँ ये साइज के वजह से, लाइक इन सब में अगर मैं आपको अब A का रिलेशनशिप पूछूंगा, ठीक है, A विल बी इन एन इंक्रीजिंग मैनर। ठीक है, वाई? बिकॉज अमंगस्ट नॉन पोलर गैसेस, ये मैंने आपको पहले भी लिखा हुआ है, साइज इंक्रीजेस, A the attractive force between molecules increases. ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो लो प्रेशर रीजन था, ठीक है, इसमें मैं ये ऑब्जर्वेशन आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है, नाउ थोड़े सिंपलर क्वेश्चंस चलो आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, लेट मी टेक अ सेट ऑफ सिंपलर क्वेश्चंस विद यू। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैं टेस्ट में पूछूंगा।
चलो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करो। ये रिलेटिवली थोड़े इजी रहेंगे अब आंसर करने के लिए। अरे नहीं पृथ्वीराज, Z का ये लो प्रेशर रीजन में Z वाज 1 माइनस A बाय RTVM ना, तो अगर A ज्यादा होगा तो Z कम होगा ना। नहीं ठीक है यार, अभी आजकल एक्चुअली like there is this again a factor which I miss thoroughly। अभी कैसा ऑफलाइन क्लासेस होता था ना, तो आई यूज टू कंडक्ट नॉट दीज ऑनलाइन टेस्ट बट एक ऐसा क्लास का ऑफलाइन टेस्ट रखता था मैं। एंड जनरली बीच में एक बार तो ऐसा मेरा मूड होता ही था कि मैं इतना टफ पेपर बनाता था दैट ऐसे लाइक बच्चे देख रहे होते थे एक दूसरे की शक्ल। बट अभी मैं ऐसे ऑनलाइन अगर पेपर बना दूंगा टफ, तो पेस वाले मुझे निकाल देंगे, बोलेंगे सर ठीक है आप हमारे बच्चों को डरा रहे हो। तो अभी आई एम टाइड डाउन विद दीज रेस्ट्रिक्शंस। ऑल राइट, 73 का करेक्ट आंसर। हीलियम का रियल गैस रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है? ये वाला ग्राफ रहता है ना हाइड्रोजन हीलियम का, ये मैंने ऊपर ही ऑब्जर्व कराया। तो इट इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय 1 प्लस पी बाय आर टी। राइट। हाँ, हर्ष, प्रत्याशा, श्रेयस, शुभम, करेक्ट। नहीं प्रथमेश, तुमने गड़बड़ कर दिया कि यूनिटी कैसे कह रहे हो तुम? रूम टेम्परेचर पे तो ये ऐसा ग्राफ है ना, अभी थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व करवाया। ठीक है, 74th का आंसर करो। 74th में आई थिंक ये 1 है, ये शायद 2 है, ठीक है, और ये शायद 3 है। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुली आंसर करना। आई एम नॉट श्योर कौन सा 1 कौन सा 2 कौन सा 3, बट अभी ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो कहाँ पर अट्रैक्शन के फोर्सेस एब्सेंट है? हाँ राइट केदार। हाँ राइट, राइट यश। नहीं श्रेयश आपका गलत है। हाँ राइट आस्था, राइट ऋग्वेद, राइट साने का, राइट तनिषा, करेक्ट। तो ये सेकंड वाले में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है ना। यहाँ पर ये वाला ग्राफ कैसा है, दिस इज z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बाय आर टी, इसमें बी फीचर हो रहा है। ठीक है, 75 वाला। ओहो, 75 वाले में तो मैंने ड्रॉ कर दिया। इसमें आपको बताना है कौन सा हाइड्रोजन कौन सा हीलियम होगा या नियॉन होगा। ठीक है, एंड ये हाइड्रोजन मतलब H2 है, गैस है, नॉट जस्ट सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, तो यहाँ पर
ठीक है, साइज के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, दैट साइज ऑफ H2 इज ग्रेटर देन साइज ऑफ He, राइट। तो इसका मतलब B of H2 is greater than B of He implies H2 graph is above He का ग्राफ, राइट। तो यहाँ पर ये H2 रहेगा और ये He रहेगा, राइट। ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, ये वाला बता दो 76 का। नियॉन और H2 में मतलब नियॉन का ग्राफ हो सकता है नीचे से ऊपर जा रहा हो, ठीक है। नियॉन का ग्राफ हो सकता है क्योंकि रूम टेम्परेचर कंडीशंस पे हाइड्रोजन और हीलियम ही है जिसमें लाइक वी फाइंड दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस कैन बी नेग्लेक्टेड। नियॉन में हो सकता है ग्राफ थोड़ा नीचे से ऊपर जा रहा हो। हाँ नहीं, प्रथमेश आपका गलत है, गड़बड़ कर दिया आपने, उल्टा होगा। आस्था, प्रत्याशा, श्रेयस करेक्ट। नहीं लक्ष्मी, आपने भी गड़बड़ कर दिया। हाँ, राइट आर्यन, राइट पृथ्वीराज, राइट ध्रुवा, राइट ऋग्वेद, राइट सत्या। नहीं तनिषा, आपने भी गड़बड़ कर दिया। सानिका, आपने भी गड़बड़ कर दिया। अरे लाइक ये कैसा टेम्परेचर होगा? दिस विल बी लेस देन बॉयल्स टेम्परेचर, दिस विल बी ग्रेटर देन बॉयल्स टेम्परेचर, राइट। तो T1 विल बी लेस देन T2 विल बी लेस देन T3 ना। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाते जा रहा है। ठीक है, अभी समझ में आया सानिका? हाँ, रियल गैस approaches the behavior of an ideal gas when the temperature is increased। हाँ तो करेक्ट है ना ये, बट उसमें आपको लो प्रेशर रीजन में भी रहना पड़ेगा। मतलब व्हाट देन यू विल हैव टू थिंक ऑफ इट, जो प्रथमेश आप सोच रहे हो ना, वो आपको एक्चुअली इस एरिया में जूम इन करके देखना पड़ेगा। इस एरिया में जब आप जूम इन करके देखते हो ना, तो यहाँ पर, ठीक है, मैं जूम इन करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो z=1 का ग्राफ रहता है, ठीक है, तो इसमें कैसा होगा, ये ग्राफ का डिप यहाँ पे शार्प रहता है, ठीक है। एंड जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, ये ग्राफ का डिप कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अंडर अ लो प्रेशर रीजन द ग्राफ at a higher temperature will be less deviated from z=1, ठीक है। ऑल राइट, नाउ ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। एंड ये वन और मोर देन वन चॉइस है, ठीक है। हाँ, टीबी का ग्राफ यहाँ पर नहीं है। टीबी का बॉइल्स टेम्परेचर पे तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा ना, ये लो टेम्परेचर रीजन में z=1 रहेगा और फिर इंक्रीज करेगा, दैट विल बी द ग्राफ एट बॉइल्स टेम्परेचर। हाँ हाँ, मुझे याद है, मैंने ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था, बट देखते हैं कितना किसको याद आ रहा है।
ठीक है, अब आई थिंक यू विल बी इन अ मच बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. हम्म. हाँ, करेक्ट. ए बी, सॉरी, ए सी एंड डी, राइट, दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ए सी एंड डी. ठीक है. हाई प्रेशर रीजन में ये सब ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव ही हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज z इज इक्वल टू, अभी अपन जब ये पढ़ चुके हैं वेरियल फॉर्म, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच बेटर. बिकॉज फिर ये वी एम स्क्वायर, वी एम क्यूब, ये वाले टर्म सब कंट्रीब्यूट करने लग जाएंगे. ठीक है, ये सब, these cannot be neglected. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई ये जो बी ऑप्शन है इसमें दिस लीनियर एट ऑल प्रेशर, ठीक है, ये ऑल प्रेशर इज एक्चुअली व्हाट मेक्स इट गड़बड़. क्योंकि इवेंचुअली ये वाला ग्राफ, ठीक है, नीचे जाने के बाद में फिर से ऊपर उठेगा ही सही. ठीक है. नहीं, इसमें b इक्वल टू 0 मतलब व्हाट इट इज सेइंग इज कि b का फैक्टर नेग्लेक्ट हो रहा है, बट a का तो रहेगा ना. यहाँ पर in this region z will be equal to 1 minus a upon rtvm, and इस region में z is equal to 1 plus pv by rt. ठीक है, समझ में आया पृथ्वीराज? ऑल राइट, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो. अरे अरे अरे, सोल्यूशन मिटाओ 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 उसको. ट्राई करो.
ऑलराइट, इसमें नोटिस करना कैसे करेंगे, वन मोल ऑफ वंडरवॉल्स इक्वेशन बोला है और डी जीरो कर दिया है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, P प्लस जो ये ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ठीक है, इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी था, ठीक है। इसमें n को 1 लेने के लिए बोला है, b को 0 लेने के लिए बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस ए बाय वी स्क्वायर, v इज इक्वल टू आर टी। तो अगर इसको मैं ओपन अप कर दूंगा तो ये पी वी प्लस ए बाय वी इज इक्वल टू आर टी, राइट। सो यू कैन सी p इज इक्वल टू माइनस a इंटू वन बाई वी प्लस आर टी, राइट। सो यू कैन सी दैट ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो माइनस a है ये क्या हो जाएगा आपका स्लोप, और ये जो आर टी है ये क्या हो जाएगा आपका y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे स्लोप आप निकाल लोगे, स्लोप कितना रहेगा, ये माइनस a विल बी इक्वल टू लाइक मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं सीधे सीधे, a विल बी इक्वल टू, यू कैन सी 1.5 अपॉन 1, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी, एक और क्वेश्चन। हाँ, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो पृथ्वीराज, z इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी, वो यहीं से तो आ रहा है, आप उसको भी अप्लाई कर ही सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है। ऑल राइट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगली क्लास में आई विल टॉक अबाउट लिक्विफिकेशन एंड आई थिंक दैट शुड बी योर लास्ट क्लास ऑफ गैसियस स्टेट, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको रियल गैस का होमवर्क भेजूंगा करने के लिए, वो ज़रूर ट्राई करना। इसके बाद में मैं एक्चुअली पता करता हूँ, या तो बॉन्डिंग रहेगा या थर्मो रहेगा। हाँ राइट लक्ष्मी, सानिका आपने यूनिट्स में गड़बड़ कर दिया। हाँ राइट आस्था, तो ये हो गया ना, इन द लिमिट्स ऑफ प्रेशर टेंडिंग टू जीरो, सो वेरी वेरी लो प्रेशर कंडीशंस में z टेंड्स टू 1, so pv is equal to z nrt will be pv is equal to nrt, 1 into 0.0821 into 273, that is 22.4 liter atm या atm लीटर। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यही मुझसे पूछा था ना वो पृथ्वीराज भी,
कि हाउ Z वर्सेस P या PV वर्सेस P का ग्राफ सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें यूनिट्स का भी ध्यान रखना, बी और डी में बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये? प्रीवियस क्वेश्चन में कहाँ अटके भाई? देखो ना इसमें y वर्सेस x का कैसा ग्राफ है। ठीक है, ऑल राइट, चलो कूल, फिर आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं। वी विल कंटिन्यू विद द लास्ट पार्ट, दैट इज लिक्विफैक्शन। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, उसके साथ क्रिटिकल स्टेट भी समझा दूंगा एंड रिड्यूस्ड इक्वेशन भी समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट लाइकली वी विल बी एबल टू क्लोज द चैप्टर। मैं होमवर्क भेजूंगा, वो जरूर ट्राई करना। ठीक है, चलो, टेक केयर, गुड नाइट।